Hope I am audible to all. Welcome to DTU webinar series. Am I audible to everyone? The theme of this series is shaping knowledge, Yes, ma'am. understanding NEP 20. Thank you. So we are doing this webinar series in order to understand NEP 2020 a bit more. This is our efforts towards understanding NEP 2020. In the second session, which is today, we will be understanding more about equitable and inclusive education, which is a separate chapter in NEP 20. The sixth chapter, and it talks. Please let me know if it's visible. Can you see my screen? Okay. So I'll be switching off my camera since there is an issue around bandwidth. Before we start our presentation, let me introduce myself. I am Dr. Shaini Vashisht, Assistant Professor, Delhi Teachers University, and I will be taking this session on the topic Equitable and Inclusive Education, Learning for All. In this presentation, I will be covering the various frameworks and the guidelines which are given by the Government of India. Let's begin our presentation. Before we start the presentation, quickly ask all of you to have a careful look at what you are seeing at your screens and observe it for a minute. Okay. Would anyone like to explain what you are able to see in front of you? कोई बताना चाहेगा? Let's keep this presentation a bit interactive. We'll keep asking questions and we'll keep answering them and we'll keep discussing things. We are seeing a picture, rather two pictures, and both the pictures are similar in some extent and they are different also. Mainly the concept of equality and equity. Very good, very good. So what we are seeing right now is two sets of pictures, and in these pictures we have three individuals each. If you can see the individual who's wearing a purple t-shirt, ये काफी short हैं. इनसे थोड़े से tall हैं जिन्होंने red t-shirt पहनी है और जिन्होंने blue t-shirt पहनी है ये काफी tall हैं. So when we talk about equality and when we talk about equity, सबसे ज़्यादा इस image को use किया जाता है in order to understand the difference that these two terms show. ये दोनों sets में ये जो भी individuals हैं ये एक match देखना चाहते हैं और match देखने के लिए इनको boundary के बाहर कुछ ना कुछ support चाहिए. अब तीनों को अगर हम same support देंगे, तीनों को अगर हम equal support देंगे, तो क्या वो तीनों वो match देख सकते हैं? Of course नहीं, क्योंकि तीनों के individual differences हैं. They are very unique in their own ways. So if अगर हम left वाली picture में देखें, अगर हम तीनों को एक सी support system provide करते हैं, all three of them are not able to see the match. The guy who's the tallest, one wearing the blue t-shirt is able to, the one who's wearing the red t-shirt is able to, but जो सबसे short हैं height में वो नहीं देख पा रहे. On the other hand, हम right side के picture में देखते हैं, यहाँ पे हमने उन्हीं boxes को जिन पे वो खड़े थे उन्हीं boxes को rearrange किया और सबकी individual need के according उनको support दिया. So the first guy who was the tallest doesn't require any support in watching the match.
is tall enough to see it from the outside of the boundary. बट जो रेड टी शर्ट पहने हैं या जो पर्पल टी शर्ट पहने हैं उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है. स्टिल दे आर बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इसलिए हमने थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया रेड टी शर्ट वाले इंडिविजुअल को एंड ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया पर्पल टी शर्ट वाले इंडिविजुअल को. नाउ ऑल थ्री ऑफ देम आर एबल टू एंजॉय दैट मैच. दिस इज इक्वालिटी एंड इक्विटी. This is a symbol of how to support people, how to support individual according to their unique abilities and differences. So when we talk about equality, when we talk about equity, हम इस तरह से इस concept को समझते हैं. And the same concept gets implemented through our education. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Before we begin this presentation, कुछ terms हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है या उनके बारे में जानने की ज़रूरत है. ये टर्म्स हैं, ये काफ़ी अच्छे से हाईलाइटेड है हमारी NEP 2020 में भी और जो हमारी गाइडलाइंस दी हैं अबाउट द पॉलिसी फ्रेमवर्क. इक्विटेबल एजुकेशन, इक्विटी, सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, specific learning disabilities and children in vulnerable situations. All these terms are very relevant when we talk about equitable and inclusive education, because all the individual who falls under these different categories get incorporated within the inclusive education and equitable education part. So equitable education क्या होता है? जैसे हमने अभी पिछली इमेज में देखा था, इक्विटेबल एजुकेशन होता है जब हर बच्चा अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए सपोर्ट लेता है और वो उसकी यूनिक एबिलिटीज के कारण उसकी यूनिक एबिलिटीज के अकॉर्डिंग सपोर्ट मिलता है. तो वो होता है इक्विटेबल एजुकेशन. हमने एजुकेशन प्रोवाइड करी, हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, हमने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी, बट दोज अपॉर्चुनिटीज एंड दोज support system that we are talking about was equitable in nature, was according to the unique nature of that particular individual. Equity भी हम यहीं से समझते हैं. So when we talk about socio-economically disadvantaged groups, socio-economically disadvantaged, ये तीन शब्दों से बना है, socio, economics and disadvantaged. Socio से हमारा मतलब होता है सोसाइटी में, इकोनॉमिकली से हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो स्टेटस है, जो क्लास है या जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेज ग्रुप, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको एक डिसएडवांटेज हो रही है सोसाइटी में. सो सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसको हम SEDG भी कहते हैं, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जो हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटीज. हम इसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटीज इंक्लूड करते हैं, सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज को भी इंक्लूड करते हैं, हम जोग्राफिकल आइडेंटिटीज को इंक्लूड करते हैं. वी इंक्लूड डिसेबिलिटीज इन दिस एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस. इसके अंदर माइग्रेंट कम्युनिटीज आ जाती हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स आ जाते हैं, चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सिचुएशंस आ जाते हैं, विक्टिम्स ऑफ और चिल्ड्रन ऑफ those are victims of child trafficking, orphans, urban poor. ये categories हम इसके अंदर include करते हैं. Let's move on to the specific learning disabilities. We all are teachers, we all understand किस तरह की disabilities होती हैं, वो बच्चों के अंदर पाई जाती हैं. When we talk about learning disabilities, we all are aware what kind of abilities and what kind of disabilities are there. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कई कंडीशंस हैं जो परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सिचुएशन, ये वो बच्चे हैं जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में ग्रो कर रहे हैं. दे आर डिसएडवांटेज ड्यू टू द सोशल, कल्चरल, जोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक और जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ देयर ओन and of their context. Now move on to the introduction to the equitable education. जैसे कि हमने समझा, equitable education जो है, NEP कहता है कि it focuses on ensuring that all learners, regardless of their background and circumstances, they get an access to quality education.
तो हम वहाँ पे रिमूव करते हैं बैरियर्स so that they can participate more, they are able to get included in the overall education system. इम्पॉर्टेंस क्या है इंक्लूसिविटी की? कोई बताना चाहेगा कि हम अगर इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? हम सब ने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, मेकिंग स्कूल्स इंक्लूसिव, इंक्लूसिव लर्निंग। तो ये क्या होता है? एज अ टीचर हम इससे क्या समझते हैं? यस, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? I see many teachers here. हेलो, हम Yes. ऐसा करिकुलम फ्रेम कर सकते हैं जिसमें हम जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड करके ऐसा करिकुलम फ्रेम कर सकते हैं जिससे वो एक्सक्लूड ना होए। जैसे ऐसी एक्टिविटीज फ्रेम कर सकते हैं। हम अपना स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ऐसा फ्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। सो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो वो इंक्लूड करने की बात करता है। इंक्लूसिव जो टर्म है वो निकला ही इंक्लूड से है, इंक्लूजन से है। तो जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो हम हर डाइवर्सिटी को क्लासरूम में इंक्लूड करने की बात करेंगे। अब डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, अगर हम देखें तो हम हर तरह से अपनी डाइवर्सिटी को देख सकते हैं, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो, अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ हों। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है। देन हाउ टू यूज़ दैट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम बिकम्स अ चैलेंज। तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन का एक मैजिक है जिसकी वजह से हम क्लासरूम को इतना एनरिच करते हैं कि वो जो डाइवर्सिटी है उसको एज ए टीचिंग एड, एज ए लर्निंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। और हम इस तरह के एक्सपीरियंसेस को कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं क्लासरूम में जिसमें वो सारी डाइवर्सिटी को केटर भी कर सके और सबके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी रिच हो सके। सो की प्रिंसिपल्स क्या हैं? की प्रिंसिपल्स अगर एक इक्विटेबल क्लासरूम और एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात होती है, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी फेयर होना चाहिए। क्लासरूम में फेयरनेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए सबसे पहले एजुकेशन का। रिस्पॉन्सिवनेस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। टेलरिंग एजुकेशन टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल द लर्नर्स। तो जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जिन भी बच्चों के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं, कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन को उनकी डाइवर्स नीड्स के अकॉर्डिंग भी टेलर मेड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी, होल्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं ये हम काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं। स्कूल के ऊपर भी एक, चाहे हम एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें या स्कूल की बात करें, जब आपके पास डिफरेंट एबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी अचीवमेंट को भी इंश्योर करना उस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बन जाता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। If we move on to the second part of this presentation, we will be understanding कि national guidelines क्या कहती हैं। There is a guidelines which is called National Guidelines on Equitable and Inclusive Education. ये एक framework है और ये framework हमें बताता है कि कैसे हमें एक structured approach लेके चलनी है in order to enrich the educational environment for the learners. This framework aims to guide educators and institutions in implementing inclusive practices effectively within the classroom and within their overall educational institution. ये जो गाइडलाइंस है ये बनाई गई हैं ताकि इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन दी जाए स्टूडेंट्स को कि सबके एक्सपीरियंसेस काफ़ी रिच रहें और डाइवर्स लर्निंग नीड्स को भी अच्छे से टैप किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। व्हाट इज़ द स्कोप एंड व्हाट इज़ द टारगेट एजुकेशन ऑडियंस? तो जो भी ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो बात करती हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की, ये फ्रेमवर्क टारगेट करता है हमारे एजुकेटर्स को, जो कि आप लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को एंड स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिशनर्स को, क्योंकि इसके अंदर वास्ट
डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ जाती है, इसीलिए हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी काफ़ी वास्ट हो जाती है. Implementation goals according to this framework is to ensure that all educational institutions adopt and implement inclusive education practices effectively, and to develop monitoring and evaluation mechanism to assess the impact of these guidelines on learning outcomes. तो जो भी लर्निंग क्लासरूम में होगी या जो भी क्लासरूम में पढ़ाया और सिखाया और सीखा जाएगा वो आउटकम बेस्ड होगा. कहीं ना कहीं उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की भी रिक्वायरमेंट है और ये एक गोल की तरह देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में हम उस पूरे प्रोसेस को अच्छे से मॉनिटर करें एंड कॉन्टिन्यूसली उसका एक इवैल्यूएशन होता रहे, ताकि पता चले कि जो शिक्षा हम क्लासरूम में दे रहे हैं या जो एक्सपीरियंसेस हम क्लासरूम में क्रिएट कर रहे हैं वो हर बच्चे तक कितने इफेक्टिवली पहुंच रहा है. कुछ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ें हैं. दीज आर द की कंपोनेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द पॉलिसी गाइडलाइंस. इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी बात होती है, इसके अंदर गैप्स की भी बात होती है और इसके अंदर एक्शनेबल स्टेप्स की भी बात होती है. सो हम अब प्रैक्टिसेस की बात करते हैं कि इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एजुकेशन में जो है, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट. ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये क्लासरूम के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो क्रिएट करती ही है, कहीं ना कहीं ये लर्निंग नीड्स को केटर करते करते बच्चे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी रिच कर देती है. जब हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देते हैं या सिमिलर एक्सपीरियंसेस डिफरेंट एबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स को देते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोप आ जाता है कि बच्चे पीयर लर्निंग कर सकें. बच्चों के पास हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप के अंदर और लो एबिलिटी स्टूडेंट्स हैं, एंड इफ़ देयर इज़ अ टास्क जो दोनों को असाइन किया गया है तो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन का एक स्कोप रहता है, कहीं ना कहीं पीयर लर्निंग का एक स्कोप रहता है. तो वो क्लासरूम जो कि एक ज़माने में एक टीचर सेंट्रिक क्लासरूम हुआ करता था, अगर हम उसको चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम की तरफ लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप डायनामिक्स को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसीलिए एबिलिटी ग्रुपिंग इज़ a kind of practice which we often utilize in the classrooms. कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है. एजुकेटर्स जो हैं वो क्लासरूम में एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं एंड स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की एबिलिटीज से सीखते हैं. वो एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट करके काम करते हैं और अपनी बेस्ट एबिलिटीज को यूटिलाइज करते हैं. जहाँ किसी बच्चे की नॉलेज में या जहाँ किसी एक बच्चे के स्किल में कोई गैप है तो हायर एबिलिटी वाले स्टूडेंट के साथ अगर उसकी पेयरिंग होती है तो कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में सीख जाते हैं. तो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में इस तरह की प्रैक्टिसेस आती हैं. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज अनदर प्रैक्टिस विच इज देयर इन एन इंक्लूसिव सेटअप. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में यूज कर रहे हैं वो टेलर मेड भी एक हद तक करी जा सकती है. तो अगर बच्चों की एबिलिटीज डिफरेंट हैं तो कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स को हम इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. अच्छा, कई बच्चे होते हैं जिनको लिखी हुई चीज़ बहुत आसानी से समझ में आती है, लेकिन उसी तरफ कई बच्चे इस तरह के भी होते हैं जिनको सुनी हुई चीज़ आसानी से समझ में आती है. तो बच्चों की अलग अलग लर्निंग प्रैक्टिसेस भी होती हैं, लर्निंग स्टाइल्स भी होते हैं. तो अगर हम उनको भी क्लासरूम में यूटिलाइज करते हैं विद अ वास्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो ये बहुत इफेक्टिव रहता है. यूजिंग ऑनगोइंग असेसमेंट्स टू इन्फॉर्म एंड एडजस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस. कहीं ना कहीं जो हमारी ऑनगोइंग असेसमेंट्स हैं जो हम क्लासरूम में कर रहे हैं वो भी हम यूटिलाइज करते हैं, बट इनको भी हम टेलर मेड कर सकते हैं. हम सब ने सुना होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ओरल टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं. हम ऑफ कोर्स हम सब टीचर्स हैं, हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ओरल टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट रिटन टेस्ट में लगता है कि उनको लिखना नहीं आ रहा है. कई बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है या उनको स्टेज फ्राइड होता है या वो ज़्यादा अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, बट दे आर वेरी गुड एट राइटिंग, दे परफॉर्म रियली वेल जब एक रिटन टेस्ट होता है. तो इस तरह से जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, इस तरह से जो असेसमेंट्स की टेक्निक हैं वो हम अलग अलग तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग प्रैक्टिसेस. जो भी बच्चों की अलग अलग नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. कोलैबोरेटिव लर्निंग. कोलैबोरेटिव लर्निंग एक और
फिनोमेना है जिसको हम क्लासरूम में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया, बहुत तरह के बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग नीड्स भी अलग होती हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स भी अलग होते हैं। कई बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप वर्क के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो ग्रुप वर्क के अंदर बिल्कुल दब से जाते हैं। तो यहाँ पे जो कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक है ये बहुत काम में आती है। जब हम इसको क्लासरूम में यूज करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं हमें ग्रुप सेटिंग में अगर हम उन्हें डालते हैं तो एक छोटे ग्रुप में उनके अंदर से कॉन्फिडेंस निकल के बाहर आता है, वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर पाते हैं। वो लार्जर ऑडियंस के सामने अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉलर ऑडियंस इन अ स्मॉल ग्रुप, दे कैन ट्राई थिंग्स, तो उनको थोड़ा सा फियर कम होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ये बहुत काम आता है। सेकेंड चीज ये भी होती है कि अगर कोई एक स्टूडेंट है उसका नॉलेज या स्किल सेट ज़्यादा बेहतर है और कुछ स्टूडेंट्स का कम बेहतर है, तो जब वो कोलैबोरेट करेंगे तो वो अपने अपने स्किल सेट्स को यूज़ करेंगे। अगर एक प्रोजेक्ट में हमने काम दिया और 5 बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, हो सकता है एक बच्चा जो है वो बहुत क्रिएटिवली ड्राइंग करता है, एक बच्चा जो है वो बहुत क्रिएटिवली लिखता है, एक बच्चा जो है वो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा करता है, एक बच्चे के आइडियाज़ बड़े यूनिक होते हैं। तो इस तरह से जब हम उन 4-5 बच्चों को एक साथ ग्रुप में डालते हैं तो वो कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ओनरशिप भी आता है, कहीं ना कहीं ये भी आता है कि हमने कुछ काम किया, एंड दैट इंड्यूसेस कॉन्फिडेंस। ऑन द अदर हैंड, जो स्किल सेट आपका नहीं है, आप वो स्किल सेट सीख भी पाते हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ग्रुप डायनामिक्स कैसे काम करती है और एक ग्रुप में कैसे काम किया जाता है। तो ये एक बिल्कुल प्रैक्टिस ग्रुप की तरह हो जाता है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इस तरह से बहुत काम में आता है। Another thing is universal design of learning. Implementing flexible curriculum that provides multiple means of engagement and representation and action. तो कहीं ना कहीं जो हम करिकुलम की बात करते हैं उसका मीन्स ऑफ एंगेजमेंट जब हम देखते हैं वो बदल जाता है जब हमारे लर्नर्स की नीड्स अलग होती हैं, या लर्नर्स की लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं, या लर्नर्स की एबिलिटीज अलग होती हैं। तो जब हम अपने करिकुलम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स दैट वी हैव, दैट बिकम्स अ पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो अगर हम लेसन प्लान्स बना रहे हैं तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम अलग अलग बच्चों की लर्निंग नीड्स का और लर्निंग स्टाइल्स का ध्यान रखें, उनकी एबिलिटीज का ध्यान रखें। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी। कई बार ऐसे होता है कि हमारी किताबों में, हमारी टेक्स्ट बुक्स में कुछ कहानियां होती हैं, वो कहानियां जो होती हैं वो मेजरली इस तरह से होती हैं कि आपको उसके अंदर बच्चा दिख रहा है, जो वो आपको जनरली दिखता है, जो जनरल परसेप्शन होती है एक बच्चे के बारे में, आप सोचते हैं कि कैसा बच्चा होगा, तो वैसे ही आपको उसके अंदर एक पिक्चराइजेशन मिलती है, वैसे ही उस बच्चे की क्वालिटीज मिलती हैं। अगर आपके क्लासरूम में बच्चा इस तरह से, कोई एक बच्चा है जिसका परिवेश अलग है या कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो कल्चरल, उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, या वो अलग भाषा बोलता है, या वो अलग प्रांत से आता है, या फिजिकली वो अलग दिखता है, राइट? तो आप उस बच्चे को जब वो पाठ पढ़ाएंगे या वो कहानी सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उस पाठ के साथ या उस कहानी के साथ जो है वो जुड़ नहीं पाएगा, वो रिलेटेबल नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे हम एक अपनी तरफ से ये एफर्ट कर सकते हैं कि जो हम क्लासरूम में कहानियां यूज कर रहे हैं, या हम जो टेक्स्ट बुक से हम कहानियां उठा रहे हैं, उन कहानियों को हम, उनके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा एनरिचिंग करें, जिससे कि हमारे क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस या उनकी डिफरेंट एबिलिटीज को भी हम कहीं ना कहीं टैप कर सके और उनके लिए वो चीजें रिलेटेबल हो जाए। एक इसका एग्जाम्पल मैं और दूंगी। देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड सपेरा कम्युनिटी। उस कम्युनिटी पे काफ़ी समय तक मैंने काम किया, और वहाँ से जब उन बच्चों से बातचीत करी तो सपेरा कम्युनिटी के कुछ बच्चों ने बताया कि हमें जो किताबें होती है ना वो अपनी नहीं लगती। अपनी नहीं लगती का क्या मतलब? मैम उसमें अलग अलग कहानियाँ होती हैं, हमारे जैसा तो कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर किताबें देखी गई। कुछ टाइम बाद किताबें जो हैं जब वो बदली गई तो अचानक से उसके अंदर एक कहानी निकल के आती है जो कि एक सपेरा समाज के इंसान की है, और वो घर घर जाता है और उस मोहल्ले में बीन बजाता है।
तो जब ये कहानी उन बच्चों को दिखी और उनके साथ डिस्कशन हुआ तो उनको अचानक से वो किताबें अपनी लगने लग गई। उनको लगने लग गया कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है, दैट पीपल नो अबाउट अस, दे आर टॉकिंग अबाउट अस। तो अचानक से वो जो एक इंटरेस्ट का लेवल है वो बढ़ा। तो अगर हम रिलेटेबल करेंगे अपने कंटेंट को, या अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे बच्चे का और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्लासरूम में कोई ना कोई चेंज या बदलाव लेकर आएंगे, तो वो जो एजुकेशन हम क्लासरूम में प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चे के लिए रिलेटेबल हो जाएगी। जब आपको रिलेटेबल लगता है तब आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग भी लगती है, आपको लगता है ये मुझे भी अपील कर रही है, तो ये मेरे बारे में भी बात हो रही है, तो आप इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने करिकुलम के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर हम जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर TLM यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं जो हम हमारे क्लास में डाइवर्सिटी है उसको हम अच्छे से अपील कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू सपोर्टिंग डाइवर्स लर्नर्स। डाइवर्सिटी जैसे हमने बात करी, एबिलिटी की भी होती है, लैंग्वेज की भी होती है, कल्चर की भी होती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी हम देखते हैं अपने आसपास। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि हम कैसे सभी बच्चों को एजुकेशन केटर कर सकते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम उनके लिए पर्सनलाइज सपोर्ट प्लान्स बनाएं। हम इस तरह से लेसन प्लानिंग करें जिसमें हम अपने क्लासरूम की एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने पूरे स्कूल में देखें कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो हमें सभी को केटर करना है। अगर हम सिर्फ अपने ग्रुप को देखें, जिस ग्रुप को हम पढ़ा रहे हैं उस ग्रुप में अगर हमें जो भी डाइवर्सिटी दिखती है उस डाइवर्सिटी को एज अ टूल भी हम यूज़ करें और अपनी लेसन प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करें, तो कहीं ना कहीं हम सारे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम इस प्रेजेंटेशन के थर्ड पार्ट पे आते हैं, विच इज द पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो पॉलिसी क्या कहती है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो कहीं ना कहीं हम इनहेरेंटली NEP 2020 की बात कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द लेटेस्ट पॉलिसी दैट वी हैव ऑन एजुकेशन। हमारी पॉलिसी क्लियरली इन द चैप्टर 6 it talks about equitable and inclusive education. It talks about learning for all. जैसे हमने इस प्रेजेंटेशन के शुरू में देखा था कि किस किस तरह के अलग अलग तरह के लर्निंग स्टाइल्स हैं, किस किस तरह की अलग कैटेगरीज हैं जिनको हम इंक्लूड करके चलते हैं इनहेरेंटली इंक्लूसिविटी और इक्विटेबल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में। हमारी पॉलिसी उनके बारे में बात करती है। तो हमारी पॉलिसी में जो भी चीज़ें हैं वो ये कहती हैं कि हम अगर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब ऑल द स्टेक होल्डर्स में सिर्फ टीचर्स नहीं आते या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं आते, उसके अंदर पूरी कम्युनिटी आ जाती है, पूरी सोसाइटी आ जाती है, उसमें पॉलिसी मेकर्स भी आ जाते हैं, उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीयर्स या अल्यूमनाई भी आ जाते हैं, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें बच्चे भी इक्वल स्टेक होल्डर हैं। तो पॉलिसी यही कहती है कि एजुकेशन जो है, जब हम इसको इक्विटेबल या इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करेंगे तो इनहेरेंटली ये कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। नेशनल पॉलिसीज में NEP 2020 है, क्लियरली वो इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, और कहीं ना कहीं देयर आर प्रोविजंस फॉर स्पेशल नीड्स एजुकेशन एज वेल। दिस फ्रेमवर्क clearly outlines the elimination of gender, social, cultural biases in the educational institution at the level of classroom. जब हम इंक्लूसिविटी या इक्विटेबल एजुकेशन की बात करते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको अपने करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखते हुए वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने हैं जो सारे बच्चों को अपील करें। There are legislative backings also. Rights of People with Disabilities Act, which was made in 2016. National Trust Act aims to empower people with intellectual disabilities. Non-discrimination के लिए भी हमारे पास बहुत सारे acts हैं। Educational authorities का क्या रोल है? तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, दे आर टास्क्ड विद इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस इफेक्टिवली। अथॉरिटीज का काम इनको रेगुलेट करना ही नहीं है, इसके अलावा उनको ट्रेन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो एजुकेटर्स को ट्रेन करें,
उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें सो दैट दे कैन इफेक्टिवली हैंडल द क्लासरूम्स जिसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। उनके पास टीचर्स के पास खुद इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, खुद वो इतनी सेंसिटिविटी लेके क्लासरूम में जाएं कि जब वो अपनी क्लासरूम में इतने डाइवर्स लर्नर्स को देखें तो वो उसको बहुत अच्छे से एज अ टूल यूटिलाइज कर सके और बहुत अच्छे से लर्निंग एक्सपीरियंसेस अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इसके लिए अलग से फ्रेमवर्क है विच टॉक्स अबाउट हाउ टू मेजर लर्निंग विदाउट बायस एंड रेगुलर इवैल्यूएशंस कैसे करनी चाहिए। ये सारी चीजें उन फ्रेमवर्क्स के अंदर दिखती हैं, बट कहीं ना कहीं जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम्स की बात करते हैं तो असेसमेंट्स और इवैल्यूएशंस भी टेलर मेड हो जाता है टू एन एक्सटेंट। तो बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से उनकी असेसमेंट्स एंड इवैल्यूएशन मॉडिफाई करी जाती है। Let's move on to the fourth part of our presentation, and it talks about the responsibilities of stakeholders and how inclusivity actually happens in the classroom. तो इसका जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, जब हम इक्विटेबल या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स का एक इक्वल और एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। तो इस कक्षा के लिए जो कि एक इंक्लूसिव कक्षा है उसमें सभी भागीदार हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो कम्युनिटी है। तो उस इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को बनाने के लिए सभी एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स। एजुकेटर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो अभी हमने बात करी कि एजुकेटर्स जो हैं, जो आप लोग हैं, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाने की ट्रेनिंग्स ली हैं, तो ऐसे ही जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं तो उन ट्रेनिंग्स के दौरान हमें इस तरह का स्किल सेट प्रोवाइड करा जाता है या इस तरह का नॉलेज बेस दिया जाता है, इस तरह की सेंसिटिविटी हमारे अंदर क्रिएट करी जाती है जिससे कि हमें एजुकेशन से जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में थोड़ी सी समझ आ सके। इस समझ के अलावा हमारी कोई स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं तो हम स्पेसिफिक चीज़ें भी सीखते हैं। बट जब हम एक्चुअली में क्लासरूम में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल क्लासरूम में और एक टेक्स्ट बुक में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं फंक्शनल आपको कहीं ना कहीं हार्डशिप्स दिखती हैं या कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो जब क्लासरूम में एक टीचर पढ़ाने जाता है और वहाँ पे उसके पास स्किल्स नहीं है उस डाइवर्सिटी को हैंडल करने के, उसके लिए वो टीचर क्या कर सकता है? कैन एनीवन टेल? जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो एक ट्रेनिंग हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग, जो कि हमारी सर्विस शुरू होने से पहले हमें मिलती है। बट जब हमारी सर्विस शुरू हो जाती है, हम एक्चुअली में क्लासरूम के अंदर जाते हैं, तो उस ट्रेनिंग को हम क्या कहते हैं? यस प्लीज, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। यस शिल्पी। Shilpi Sehdev, you are raising your hand. You want to say something? कोई और कहना चाहेगा? ओके, तो जैसे प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है, यस थैंक यू शिल्पी। जैसे कि प्री सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करने से पहले आप ट्रेनिंग्स लेते हैं, आप बीएड करते हैं, आप डीएलएड करते हैं, आप बीएलएड करते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करी जाती है एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स दैट आर देयर इन द स्कूल्स। बट व्हेन यू एक्चुअली रीच द क्लासरूम, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि नई डेवलपमेंट्स आती हैं। जब आप खुद पढ़ाई कर रहे थे, जब आप प्री सर्विस ट्रेनिंग्स ले रहे थे, उस टाइम पे हो सकता है वो डेवलपमेंट्स नहीं थी, तो पॉलिसी बदल गई, बहुत सारे बदलाव आए, तो अब ये चीज़ें आप तक कैसे पहुंचेंगी? आप तो आउटडेटेड हो जाएंगे। इसीलिए इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग होती है।
इन सर्विस ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो टीचर्स के लिए होती हैं जो सर्विस में होती हैं, और उन ट्रेनिंग्स के दौरान जो अलग अलग तरह की थीम्स पे होती हैं, अलग अलग लोग उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कभी स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कभी CBSE करता है, स्वयं पे हमें बहुत सारे कोर्सेज मूक्स मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो पेड अनपेड होती हैं, जो कि अब मैंडेटरी भी है टीचर्स के लिए 50 आवर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट में डिवोट करना, वो ट्रेनिंग्स होती हैं जिनको हम इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। ड्यूरिंग दीज ट्रेनिंग्स जो चीज़ें आपने पहले नहीं सीखी थी या जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाई थी, वो चीज़ें आप इन ट्रेनिंग्स के दौरान सीखते हैं। तो ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि टीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, जो सर्विस में हैं, उनकी ट्रेनिंग भी इंश्योर हो। Educational institutions take the responsibility of this task. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप लोगों के स्कूल में भी बहुत ट्रेनिंग्स होती होंगी, और आपके स्कूल में ये भी कहा गया होगा कि आपको अगर मूक्स मिलते हैं ऑनलाइन, यू कैन ऑलवेज गेट योरसेल्फ इनरोल्ड इन दैट। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ है जो आज की डेट में सभी टीचर्स को करनी है। ये इसीलिए मैंडेटरी किया गया है क्योंकि आपके पास इतना वास्ट क्लासरूम में डाइवर्सिटी है, उसको केटर करने के लिए यू ऑलवेज नीड टू गेट अपडेटेड विद एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड यू। हर एक नई चीज़ जो आपके आसपास हो रही है, जो नई पेडागॉजी आ रही है, जो अलग अलग टेक्निक्स आ रही हैं, जो पॉलिसी आपको अलग अलग चीज़ें, नई चीज़ें बता रही हैं, उसको समझने के लिए ये ट्रेनिंग्स होती हैं। सो दीज ट्रेनिंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल जर्नी ऑफ अ टीचर। अच्छा, अब इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर देखें तो पेरेंट्स का क्या रोल है? जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं ये भी एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं। अब पेरेंट्स कैसे क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं? आपने क्लासरूम में बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करी, आपने कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए कुछ एफर्ट किया या कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी। नाउ दैट इंटेंट हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट। अब पेरेंट तो उस चीज़ को हो सकता है समझ भी जाए, और हो सकता है कि वो ना समझे कि आप ये क्लास में क्यों करा रहे हैं, या उस बच्चे का ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्यों है क्लासरूम में। तो कहीं ना कहीं वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ओपन। वहाँ पे ये चीज़ें एक कोलैबोरेशन में चलनी चाहिए, और जो स्कूल में हो रहा है या जो क्लासरूम में हो रहा है, स्पेसिफिकली किसी बच्चे को लेकर अगर हो रहा है, तो हमें हमेशा ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एज अ टीचर ओपन रखना चाहिए। वी शुड बी एबल टू हैव अ डायलॉग विद दैट पेरेंट। अब अगर बच्चे की कोई लर्निंग नीड स्पेसिफिक है, अगर सिंगल हैंडेडली वो टीचर सोचे कि हम उसको अच्छे से केटर कर पाएंगे और बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर घर जाने के बाद उसको वो माहौल नहीं मिलता, या बच्चे के पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझते। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, तारे ज़मीं पे हम सब ने देखी है, राइट? तारे ज़मीं पे हम सब ने देखी, हम सबको दिखाई भी गई। हमारी एजुकेशनल जर्नी में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवी की तरह हम समझते हैं, जहाँ पे एक बच्चा है जिसको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं। अब वो बच्चा खुद भी नहीं समझता उसको क्या इश्यूज़ हैं, और उसके पेरेंट्स भी नहीं समझते। अब वो बच्चा जब बार बार उसको बहुत ज़्यादा फेलियर मिलता है, वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स को वो चीज़ नहीं समझ आ रही, टीचर्स को वो चीज़ नहीं समझ आ रही। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस मूवी में देखेंगे तो वो बच्चा एक पॉइंट पे आके बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो जो उसकी सबसे खास स्किल थी, जो जिसमें वो अपनी सारी एनर्जीज लगाता था, जिससे उसको बहुत हैप्पीनेस मिलती थी, वो ड्राइंग करता था, वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस मूवी में क्या होता है, वो जो एक नया टीचर आया है नए स्कूल का, वो जाके उसके पेरेंट्स को समझाता है कि ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, और ये प्रॉब्लम आपके बच्चे को है, और ये बच्चा बेहतर कर सकता है, उसके हाथ में ये हुनर है। अगर हम उसको इस तरह से डील करें और हम अपनी टेक्निक्स बदलें, आप मुझ पे विश्वास करो, मैं इस बच्चे को अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है उसको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है, और वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है विद द चेंज इन teaching techniques, with the change in learning techniques and the different modes of teaching learning that are utilized by that teacher.
यहाँ पे सक्सेस कैसे मिली? यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। वहाँ पे उसकी मदर ने, उसके फादर ने, चाहे बहुत डिले के बाद, लेकिन ये समझा कि कहीं ना कहीं देयर इज a special need and that special need needs to be taken care of in a special way, और उसके लिए कुछ different efforts करने पड़ेंगे and I have to be very understanding for that. तो जब उन्होंने कोलैबोरेटिव एफर्ट किया उस टीचर के साथ, उसकी बात समझी, तो वो बच्चा परफॉर्म कर पाया। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि पेरेंट्स का जो रोल है इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, इट इज अ बिग रोल। तो वो अगर ओपन कम्युनिकेशन रहता है स्कूल या पेरेंट और टीचर के बीच में, तो हम ये अचीव कर सकते हैं। हाँ, एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एज ए टीचर अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमें कुछ बच्चे जो हमारे अपने बनाए हुए कॉमनली यूज करे हुए तरीकों से नहीं समझ पा रहे, हमें अगर अपने तरीके बदलने पड़ेंगे और वो तरीके शायद पेरेंट्स को आसानी से ना समझ आए, तो हमें वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उन पेरेंट्स को रीच आउट करने के लिए। Community engagement is another thing which is very effective if we do it properly in a classroom setup. कम्युनिटी हमने बहुत सुना है एंगेजमेंट, हम लोगों ने बीएड किया होगा, बीएलएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, राइट? हमने ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज करे होंगे, सुना बहुत होगा कि कम्युनिटी को आप ऐसे क्लासरूम में ला सकते हैं, लेकिन क्या हमने एक्चुअली में ये कभी किया है? क्या हम में से कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है छोटा सा जिसमें उन्होंने कम्युनिटी को क्लासरूम में लाने की कोशिश करी हो? यस, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है? कुछ एफर्ट्स आपने क्लासरूम में करे हो जिसमें आपने कोशिश करी हो कि हम कम्युनिटी को क्लासरूम में लेकर आए, या ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें जिसमें हम कम्युनिटी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बच्चा फ्यूचर में जाएगा या जो बच्चा जब अपने घर जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, वो चीज़ वहाँ देख रहा है, उसको हम क्लासरूम में यूटिलाइज कर सके। अगर हम कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी एक बहुत रिच रिसोर्स है। अगर हम इस रिसोर्स को बहुत अच्छे से स्कूल में या अपने क्लासरूम में यूटिलाइज करें, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं वो बहुत आसानी से समझ भी आ सकती हैं और एक बड़े फन वे में आप कर भी सकते हैं। जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं या इक्विटेबल एजुकेशन की बात करते हैं, तो बच्चे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी लेकर आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स भी लेकर आते हैं। आज हमारी पॉलिसी ऐसी है कि क्लासरूम के अंदर जो बच्चा है वो अलग अलग तबके से भी आता है। तो जब हम हर तबके के बच्चे को या हर डिफरेंट लर्निंग नीड्स के बच्चे को एक क्लासरूम में डालते हैं, उस क्लासरूम में कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मल्टीपल सिचुएशंस चलती हैं। बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस भी आते हैं, बच्चों के अंदर अंडर कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी होगा, बच्चे एक दूसरे को टीज भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। जो हम अपने आसपास देखते हैं वो हमें कंटेक्चुअल लगता है, जो जिससे हम अवगत होते हैं, बट जो हम क्लास में नहीं देख रहे हमारे अपने परिवेश का, तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा से थोड़ी थोड़ी दूर जाते जाते हैं। तो जब हम देखते हैं ना कि हमारे क्लासरूम में बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो वहाँ पे हम अगर कम्युनिटी के डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को लेकर आएंगे तो वो बच्चा उनके साथ कनेक्ट भी कर पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। क्लासरूम के अंदर अगर हम एक गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं या किसी भी स्कूल की बात करें, अगर क्लासरूम के अंदर आप कुछ पढ़ा रहे हैं, फूड रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, तो हम मिल्कमैन को क्लासरूम में ला सकते हैं। वी ऑलवेज कैन डू अ सेशन विद पीपल हु एक्चुअली वर्क इन द फील्ड, दे एक्चुअली वर्क इन द ग्राउंड। हम सिक्योरिटी गार्ड को ला सकते हैं, हम इस तरह के सेशंस कर सकते हैं जिसमें हम पीपल दैट हेल्प अस, राइट, ये भी आर हेल्पर्स करके एक टॉपिक होता है। इसमें हम बहुत भिन्न भिन्न तरह के एक्सपीरियंसेस के लोगों को क्लासरूम में ला सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, जो बच्चे ने अपने आसपास देखा है वो देखेगा क्लासरूम के अंदर भी, तो वो चीज़ों को बेहतर समझेगा भी, और हो सकता है उसमें से किसी एक बच्चे का कुछ बैकग्राउंड इस तरह का हो तो उसको भी बड़ा रिप्रेजेंटेड फील होगा।
तो कम्युनिटी एंगेजमेंट से अल्टीमेटली चीज़ें जो रियलिटी से दूर होती हैं वो रियलिटी के पास भी जाती हैं, बहुत फेमिलियर हो जाती है एजुकेशन। और कोलैबोरेटिव अगर प्रोग्राम हम इस तरह का रन करते हैं तो बच्चे एक्चुअली में वो स्किल सीख सकते हैं जो उसको एक सोसाइटी में फंक्शन करने में मदद करेंगे। गवर्नमेंट एंड एनजीओ कोलैबोरेशन, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि गवर्नमेंट और एनजीओ आपस में कोलैबोरेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारे ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो कुछ टीचर्स होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से भी आते होंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में मोस्टली इस तरह के प्रोग्राम रन होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी होते हैं, मेजरली हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में दिखते हैं, जिसके अंदर एनजीओ के कोलैबोरेशन से अलग अलग तरह की चीज़ें कक्षा में कराई जाती हैं। लाइफ स्किल ट्रेनिंग कराई जाती है, जेंडर सेंसिटाइजेशन कराया जाता है, इस तरह की चीज़ें कराई जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक एनजीओ या एक ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ टाई अप कर रही है, उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, और जो एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं दिया जा रहा, वो एजुकेशन का एरिया क्लासरूम में लेकर आ रहे हैं। तो इस कोलैबोरेशन से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जो अलग अलग तरह की लर्निंग नीड्स है या अलग अलग तरह की स्किल सेट्स हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छे से मिल पाती है। अल्टीमेटली व्हाट वी वांट, बच्चा जब क्लासरूम से निकले, जब वो स्कूल से बाहर आए, तो उसके पास लाइफ स्किल्स हो, उसके पास ऐसे स्किल्स हो कि वो सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे से फंक्शन कर सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके, राइट? तो कहीं ना कहीं जब हम इस तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं क्लासरूम के अंदर, बच्चों की लर्निंग जर्नी बहुत ही रिच हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन कि चैलेंजेस क्या हैं। हम बहुत देर से बात तो कर रहे हैं कि इक्विटेबल एजुकेशन है और इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए, इसके चैलेंजेस क्या हैं। आई एम श्योर आप सबके दिमाग में आया भी होगा और आप सब ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ये चीज़ें कहने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब हम क्लासरूम में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत चैलेंजेस फेस होते हैं। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट दैट कि जब भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को या इक्विटेबल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब उन चैलेंजेस को अगर हम फेस करेंगे और फिर उसके बाद हम हार मान लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही हम उन सभी बच्चों को अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी होगी उन चैलेंजेस को या उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करने से। सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैरियर्स। उन बैरियर्स को या उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना कि किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब प्रॉब्लम हमें पता चल गई, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप कि अब इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए क्या हम सोल्यूशन ला सकते हैं, कैसे हम स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढ सकें। रिसोर्सेज की भी एक लिमिटेशन होती है स्कूल्स के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जब हम डाइवर्स लर्निंग की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि हम हर तरह की डाइवर्सिटी क्लासरूम में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज जो यूज़ करने हैं हमें, वो उसकी कमी भी होगी, उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो फंड्स भी नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इनोवेशन लाना होगा, हम अपने लेवल पे थोड़ा सा इनोवेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लैक ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल एंड सपोर्ट स्टाफ है, वो भी हमारी एबिलिटी को लिमिट कर देता है। जब हम डाइवर्स लर्निंग नीड्स की बात करते हैं, हमें पता है कि क्लासरूम्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हमारी टीचर सिर्फ एक है, आपके पास कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं है, इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू केटर टू ऑल द स्टूडेंट्स। दैट इज़ अ लिमिटेशन। अब टीचर अगर चाहते भी हैं कि वो क्लासरूम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करें या बेस्ट तरह से एक्टिविटीज़ को क्रिएट करें और सारे बच्चों को इंक्लूड करने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, सपोर्ट सिस्टम कम है, उस वजह से भी वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लासरूम में नहीं हो पाती। एक और बैरियर है विच इज़ एटीट्यूड वाला एक एटीट्यूडनल बैरियर है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शंस भी होती हैं कई ग्रुप्स को लेके। कई ग्रुप्स होते हैं जिनको हम मार्जिनल ग्रुप्स भी कहते हैं,
कई ग्रुप्स होते हैं जिनको हम जैसे हम SDGs की बात कर रहे थे, ये भी इस तरह के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बहुत तरह के हम इश्यूज को कवर करते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम एथनिक कम्युनिटीज़ की बात करते हैं या इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, ये कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं जब एक अर्बन सेटअप में क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही अलग दिखते हैं या उनका कल्चर बिल्कुल ही अलग है, और ये जो बच्चे अब बहुत ही एथनिक कम्युनिटीज से आए हैं इनका कल्चर बिल्कुल अलग है, इनका बात करने का तरीका अलग है, इनकी डे टू डे एक्टिविटीज जो है वो थोड़े अलग तरह से होती है। कल्चरल डिफरेंसेस तो हमें हर स्टेट टू स्टेट भी वेरी करते हैं ना, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये जब बच्चे एक अर्बन सेटअप के अंदर किसी क्लासरूम के अंदर आए तो एक्सेप्टेंस नहीं मिला क्योंकि वो अलग तरह से खाते थे या अलग तरह का खाना खाते थे अलग तरह से बोलते थे, अलग तरह की बातें करते थे, इनकी कहानियां अलग थी, राइट। यहाँ पे जब डिफरेंसेस आते हैं क्लासरूम के अंदर तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स मेजरली। तो अगर बच्चों के साथ में कुछ इस तरह का बिहेवियर आपस में हो रहा है कि सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन अ क्लासरूम, तो वहाँ पे टीचर का एटीट्यूड एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर टीचर का ही परसेप्शन बहुत नेगेटिव है उन बच्चों को लेकर तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो हैं दे विल कंटिन्यू टू फील मार्जिनलाइज्ड इन अ क्लासरूम सेट। बट अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर टीचर अपनी परसेप्शंस को और स्टीरियोटाइप्स को साइड में रख के उन बच्चों को बड़े सेंसिटिवली डील करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उन बच्चों को भी एक्सेप्टेड फील होगा और जो बुलिंग होती है क्लासरूम के अंदर वो कम हो जाएगी। तो ये अगर हम देखें क्लासरूम के अंदर एजुकेटर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, स्टेक होल्डर्स जिनकी भी हम बात करें दे प्ले अ मेजर रोल अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो। करिकुलम कंस्ट्रेंट्स भी बहुत हैं। अब करिकुलम इतना रिजिड है कि हम डाइवर्स नीड तो हम केटर ही नहीं कर सकते। सारे जो लर्नर्स हैं उनकी जो लर्निंग स्टाइल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लर्निंग नीड्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, हम कैसे उसको केटर करें? फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स ख़त्म करनी है, आपको सिलेबस ख़त्म करना है, उसके बाद एग्ज़ाम्स भी होने, एग्ज़ाम्स भी सबके एक ही तरह से होने, तो ये भी एक मेजर कंस्ट्रेंट हो जाता है क्लासरूम का to reach its fullest potential. Overcoming stigma. Stigma जो होता है ये एक बहुत ही strong term है। Stigma होता है कि आपने किसी की एक पर्टिकुलर ट्रेट को लेके उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया, उसके डिसेबिलिटी के अराउंड या उसके कल्चरल सेटअप के अराउंड या उसके जेंडर के हिसाब से आपने कुछ ना कुछ एक स्टीरियोटाइप बना लिया और उसको स्टिग्मेटाइज कर लिया। तो कहीं ना कहीं क्लासरूम में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन स्टिग्मास को ख़त्म करने के लिए। अब सेंसिटिविटी कैसे आएगी? बच्चे तो एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को मार भी सकते हैं, बुलिंग भी हो रही है, कोई किसी एथनिक कम्युनिटी से आया है या किसी बच्चे को कोई फिजिकल इश्यूज है या किसी बच्चे को कुछ लर्निंग प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे सेंसिटिविटी कौन लेकर आएगा? यहाँ पे सेंसिटिविटी क्लासरूम में एजुकेटर लेकर आएगा। तो एजुकेटर हैज़ टू बी सेंसिटिव इनफ। वो सेंसिटिव होंगे तभी वो इन क्लासरूम स्टिग्मास को या इन क्लासरूम इश्यूज को दूर कर पाएंगे। कुछ केस स्टडीज भी इस तरह से निकल के आई हैं जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं कि कैसे क्लासरूम के अंदर किस तरह से इनोवेटिव अप्रोचेस को यूटिलाइज करके आप अलग अलग लर्नर्स को केटर कर सकते हैं। ये केस स्टडीज हमें इंटरनेट पे हर जगह दिख जाएंगी। कई ऐसे स्कूल्स हैं जो इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कई अलग चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, राइट। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है, और अगर हम इसको सोच के चले कि सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा बहुत आसानी से, तो नहीं होगा। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे चलना पड़ता है। तो एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं? हम पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग बच्चों की क्या लर्निंग नीड्स हैं। अगर वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग जेंडर के बच्चे हैं या वो अलग एबिलिटीज़ के बच्चे हैं, तो उनकी एक्चुअली नीड्स कैसे फुलफिल करी जा सकती हैं, उनकी लर्निंग नीड्स,
हम उनके बारे में समझें, हम पॉलिसी को समझें और फिर हम इस तरह के स्किल्स को सीखें जिससे हम अपने क्लासरूम में उन सभी बच्चों तक पहुंच पाएं। ये हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, लाइक आई सेड। ये एजुकेशन हर तरह के बच्चे को प्रोवाइड करना इज अ वेरी कोलैबोरेटिव थिंग। ये सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी भी होती है और सभी स्टेक होल्डर्स एक कोलैबोरेटिव तरीके से ये चीज अचीव कर सकते हैं। इनोवेटिव पेडागोजी जो कि हम बार बार सुनते हैं, वो क्या है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो हम पेडागोजी जो हमारी चल रही है उसके अंदर हम इनोवेशंस लेके आ सकते हैं। आजकल एआई बहुत अच्छे से हम सबको समझ में आ गया है। चैट जीपीटी से शुरुआत हुई थी, जब सबको पता चला था कि अच्छा ऐसा भी कुछ पर्सनल असिस्टेंट है जिसको हमने सीधा एक सवाल पूछा और उन्होंने हमें सभी उसके पॉसिबल आंसर्स दे दिए। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उन्होंने हमें सब कुछ ढूंढ के दे दिया। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में यूज कर सकते हैं ताकि हम डाइवर्स लर्निंग नीड्स के स्टूडेंट्स को केटर कर सकें। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसको हम क्लासरूम में अडाप्ट कर सकते हैं ताकि हम बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड लेसन प्लान्स बना सकें। प्रोजेक्ट बेस्ड हम काम कर सके क्लासरूम में, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग हो जिसके अंदर बच्चे पीयर लर्निंग कर सके, कोलैबोरेशन कर सके। इससे बच्चों के बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, क्रिएटिविटी भी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, इसके अंदर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं। तो हम अगर इस तरह की टेक्निक्स क्लासरूम में यूज करेंगे, इस तरह के पेडागोजी में हम इनोवेशंस करेंगे, तो हमारा क्लासरूम का जो एक्सपीरियंस होगा वो काफी रिच हो जाएगा हर तरह के बच्चे के लिए। क्योंकि समय हमारे पास कम है, वील मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन विच इज द फ्यूचर डायरेक्शंस एंड कंक्लूजन। तो फ्यूचर क्या है? अगर हम इक्विटेबल या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस काइंड ऑफ एजुकेशन? अभी तक हमने पॉलिसी की बात कर ली, ये इस तरह की पॉलिसीज बन गई जो कहती हैं कि क्लासरूम को एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाओ, इक्विटेबल एजुकेशन है हमारी, राइट? तो इसका फ्यूचर क्या है? एक्चुअली में फ्यूचर बहुत वास्ट है क्योंकि हमारी जो लर्निंग नीड्स हैं, जो हमारी वो बच्चों की बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग तरह की होती जा रही हैं, उसमें भी डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। हमारे पास टीचिंग एड्स की इतनी वैरायटी है, हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग तरह के। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम को देखें तो उसका बहुत आगे स्कोप है। विजन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम भी यही कहता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे एम्फेसाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाए और एक इक्विटेबल एक्सेस दिया जाए क्वालिटी एजुकेशन का, ताकि सभी लर्नर्स जो हैं, सभी बच्चे जो हैं, वो एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। तो पॉलिसी मेकर्स भी यही रेकमेंड करते हैं कि स्कूल्स में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ भी, कम्युनिटी के साथ भी, ताकि ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से निभाई जा सके। हर एक इंडिविजुअल, हर एक एंटिटी अपनी जिम्मेदारी समझे कि शिक्षा देना सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी ना होके एक पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एजुकेटर्स, एज एन एजुकेटर्स हम क्या कर सकते हैं? एज एन एजुकेटर्स हम इन चीज़ों को, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन में हम मदद कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एजुकेट करें, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के बारे में, बच्चों की लर्निंग डाइवर्सिटी के बारे में, और बच्चों के अंदर आपस में जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, चाहे वो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ हो, हम खुद को एजुकेट करें। ऑन दी अदर हैंड हम अपने कोलैबोरेशन अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। हम अलग अलग एजुकेटर्स के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और मुझे स्पेशल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं उन टीचर्स के साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करने की कोशिश करूँ और उनसे भी मेरा ज्ञानवर्धन हो और कहीं ना कहीं मेरा जो क्लासरूम है वो भी ज़्यादा रिच हो। तो ये हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हम अपने ऊपर भी काम करें। सो समरी इस प्रेजेंटेशन की यही है कि एज अ टीचर हमें पॉलिसी को बेहतर समझने की भी ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन में मदद करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स को कैसे क्लासरूम में यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पे भी अपने आप को थोड़ा सा स्कूल करने की ज़रूरत है। विद दिस द प्रेजेंटेशन एंड्स and
and the platform is open for any questions that you have. Do we have any questions? कुछ सवाल हैं हमारे पास? No, ma'am. Thank you. Yes, anyone? If not, then we can close this session. Okay. Thank you very much. On the behalf of Delhi Teachers University, Honorable Vice Chancellor and the faculty at Delhi Teachers University, I thank you all for participating in this session, and I hope in the future sessions that we are going to have every month, we see more motivation of joining them. And with this, I close this session. Thank you very much. We may leave the meeting. I'm just taking the attendance. So those participants who have joined the session, they will get the certificate. Thank you very much.